Next, behavioral finance. What is behavioral finance? Conventional financial management is based on the assumption that markets are efficient and that investors behave in ways that are logical and rational. Now, what does this mean? Conventional financial management is based on the assumption that markets are efficient. Markets are efficient means that every single individual in the market has the same amount of information that the other has. That means there is no signature or there is no symbol of insider trading happening, and thus every single investor, every single person who wants to invest in the company has the same information. कन्वेंशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस assumption पे हमेशा वर्क करता था. ठीक है. अभी efficient market hypothesis. Now, what does this mean? See, the EMH, that means ethical market hypothesis, states that security prices fully and fairly reflect all relevant information. ये देखो, fully reflect all the relevant information. This means that it is not possible to consistently outperform the market by using any information that the market already knows except through luck. इसलिए बोलते हैं कि शेयर मार्केट लक का गेम है, because everyone has the same amount of information as the other has. However, in real life, that is not the case, because insider trading does happen in the real world, right? Phil, the idea is that new information is quickly and efficiently incorporated into asset prices at any point in time, so that old information cannot be used to predict future price movements. Now we move ahead. Behavioral finance. Despite the evidence in support of the efficient markets theory, some events seem to contradict it, such as significant share price volatility and boom/crash patterns. For example, the stock market crash of October 1987, where most stock exchanges crashed at the same time. So this is basically बाहर की यूके कंपनी के स्टॉक मार्केट का एग्जाम्पल है, यूके स्टॉक मार्केट का एग्जाम्पल है ये. support efficient with theory, some when seem contradict. अभी डिस्पाइट देर आर एविडेंस कि हाँ भाई चल रहा है सही, सब कुछ सही चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग फेयर एंड स्क्वायर, कोई पूरा होगा, पूरे मार्केट के सारे एम्प्लॉयज के पास सेम इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास है. इसके बावजूद कई बार क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है. इसके बावजूद कई बार ऐसा हो जाता है कि शेयर प्राइसेस एक पर्टिकुलर कंपनी के बहुत ज्यादा अचानक से मतलब बूम हो जाते हैं, और बहुत सारे लोगों को प्रॉफिट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं आउट ऑफ नोवेयर. तो ऐसे सारी चीजें, ठीक है ना. फिर की कॉन्सेप्ट ऑफ बिहेवियरल फाइनेंस, और दीज आर जस्ट कॉन्सेप्ट्स. एक होता है एंकरिंग. एंकरिंग क्या होता है? इन्वेस्टर्स हैव अ टेंडेंसी टू अटैच और एंकर देयर थॉट्स to a reference point, even though it may have no logical relevance to the decision on hand. For example, investors are often attracted to buy shares whose prices has fallen considerably because they compare the current price to the previous high. So this is anchoring role. ये चीज हर कोई इन्वेस्टर करता है. इवन आई एम इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट, ये सेम थ्योरी को फॉलो करता हूँ कि अगर शेयर मार्केट 2 साल पहले इसी शेयर का प्राइस, या 1 साल पहले अगर इस शेयर का प्राइस 2000 था, ठीक है, और आज अगर इस शेयर का प्राइस से 1100 है, तो इसका ये मतलब हुआ कि इस शेयर के अंदर वो कैपेसिटी है कि ये 2000 तक जा सकता है. क्योंकि ये 1-2 साल पहले 2000 तक गया था. तो अगर ये 2 साल पहले 2000 तक गया था, तो क्या 2 साल बाद सेम मार्केट कंडीशंस आने के कोई चांसेस है? अगर है तो इसका मतलब है कि दिस शेयर प्राइस और दिस शेयर हैज द पोटेंशियल टू रीच 2000 अगेन, सो पीपल विल इन्वेस्ट. गैम्बलर्स फेलेसी. Investors have a tendency to believe that the probability of a future outcome changes because the occurrence of the various past outcomes. For example, if the value of the share has risen for 7 consecutive days, some investors might sell the shares, believing that the share price is more likely to fall on the next day. This is not necessarily the case. Gambler's fallacy is basically like a law of averages, that if the share price has been moving upwards for 7 days, that means it is going to crash on the 8th day. Like there is this there is one theory. अगर टॉस हो रहा है, राइट, अगर वो टॉस हो रहा है, तो वो टॉस अगर 8 बार हेड्स आया है, या अगर 10 बार हेड्स आया है, 11 बार हेड्स आया है,
तो 12वीं बार शायद टेल्स ही आएगा ना, बिकॉज लाइक मोस्टली मोस्टली तो मतलब वही आएगा ना, वो टेल्स ही आएगा ऐसा। कई बार वो एक मतलब वो एक तरीके की थिंकिंग रहती है लोगों की। या लाइक अगर क्रिकेट है तो उसमें से ऐसे वो ड्रीम इलेवन में लोग टीम बनाते हैं, तो वहां पर अगर एक प्लेयर हैज बीन परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली, सो दैट मींस इन द नेक्स्ट गेम ही इज नॉट गोइंग टू परफॉर्म। Herd behavior. Herd behavior is the most common behavior. This is the tendency for individuals to mimic the actions, rational or irrational, of a larger group. अगर सब लोग बोल रहे हैं हाँ अडानी में मतलब पैसे डालो, तो सब लोग अडानी में पैसे डालना स्टार्ट कर देते हैं विदाउट इवन थिंकिंग दैट अडानी हैज नाउ रीच्ड इट्स ऑल टाइम हाई, सो इट माइट गो डाउन। लाइक कई बार लोग इतना नहीं सोचते कि अरे अभी सब लोग बोल रहे हैं सीए करो, तो सब लोग तो फिर सब लोग सीए करते हैं। सो दिस इज व्हाट पीपल डू। दिस इज लाइक पीयर प्रेशर काइंड ऑफ अ थिंग, कि अगर मेरे चार दोस्तों ने इसमें मतलब पैसे डाले तो मैं भी डाल देता हूँ ऐसा। द फर्स्ट इज द सोशल प्रेशर ऑफ द कम एक मिनट द फर्स्ट इज द सोशल प्रेशर ऑफ conformity. Most people are very sociable. Okay, I didn't know it was a word. Very sociable and have a natural desire to be accepted by a group. The second is the the second is the common rationale that it's unlikely that such a large group could be wrong. एक और कॉन्सेप्ट मतलब रहता है। एक होता है सोशल प्रेशर की अगर सब लोग पैसे डाले तो फिर मतलब मैं भी डाल देता हूँ, वरना सब लोग का फायदा होगा और मतलब मेरा ही नहीं होगा। और सेकंड ये भी रहता है कि यार अगर इतने सारे लोग डाल रहे हैं, इतने सारे लोग बोल रहे हैं, तो इतने सारे लोग साथ में थोड़ी ना गलत बोल सकते हैं वैसा। फिर आता है ओवर रिएक्शन एंड अवेलेबिलिटी बायस। अकॉर्डिंग टू ईएमएस क्या था, एक मिनट ना, दिस वाज efficient market hypothesis. According to efficient market hypothesis, new information should more or less be reflected instantly in a securities price. New information जो भी आ रही है that should be reflected more or less instantly in the securities price. For example, good news should raise a business share price accordingly. Reality, however, tends to contradict this theory. Often, participants in the stock market predictably overreact to new information, creating a larger than appropriate effect on securities price. ये बहुत कम होता है आजकल, ओवर रिएक्शन एंड अवेलेबिलिटी बायस। दिस इज बेसिकली कि अगर मेरे को अभी नई इंफॉर्मेशन मिली है कि टाटा का शेयर ऊपर जाने वाला है, तो मैं बहुत सारे टाटा के शेयर साथ में ले लूंगा और सिर्फ मैं ही लूंगा। तो क्या हो जाएगा कि अरे बहुत सारे टाटा के शेयर्स बिक गए, तो शेयर प्राइसेस अगेन मतलब गोइंग अप ओनली, कि अरे बहुत सारे लोग, क्योंकि इफ वन पर्सन इज बाइंग से 5 शेयर्स तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, बट देयर इज एन ओवर रिएक्शन बिकॉज अभी टाटा का नाम न्यूज पेपर्स वगैरह में मतलब बहुत ज्यादा आ रहा है। सो पीपल टेंड टू बाय अ लॉट ऑफ शेयर्स एंड एंड लार्ज ग्रुप ऑफ people buy these large amount of shares, because of which the share price goes keeps on going up, and then suddenly कोई बड़ा इन्वेस्टर पैसे पैसे मतलब निकाल लेता है, तो फिर सब लोग मतलब फिर वो डूब जाते हैं ऐसा। फिर कंफर्मेशन बायस। कंफर्मेशन बायस क्या है? जैसे कि कई बार क्या हो जाता है ना कि इफ आई आस्क अ फ्रेंड, ठीक है, कि इफ आई आस्क अ फ्रेंड कि यार शुड आई बाय दिस शेयर, वो बोलते हैं हाँ हाँ बाय करी करी करी, बट व्हाई, लाइक व्हाट इज द बेसिस ऑन विच यू आर मतलब वो टेलिंग मी टू बाय दिस शेयर। फिर वो एक दो मतलब वो रीजंस दे देता है, एंड आई एम सोल्ड ऑन इट, कि हाँ इसने मतलब ये बोला तो मतलब बराबर ही बोला है। बट वो गलत है सही है वो क्या है, मतलब वॉज माई कंफर्मिंग द information with that person right or wrong? तो ये देखो, it can be difficult to encounter something or someone without having a perceived opinion. This first impression can be hard to shake because people also tend to selectively filter and pay more attention to information that supports their opinions while ignoring or rationalizing the rest. This type of selective thinking is often referred to as confirmation bias. In investing, the confirmation bias suggests that an investor would be more likely to look for information. एक मिनट ना, ये देखो, ये ध्यान देना। In investing,
The confirmation bias says that an investor would be more likely to look for information that supports his or her original idea about the investment rather than seek out information that contradict it. कई बार होता है ना, लाइक वी आस्क अवर प्रोफेसर और द टीचर कि यार मैं इस सब्जेक्ट में पास हो जाऊंगा ना सर, या हो जाऊंगा ना. सो दैट इज लाइक यू आर जस्ट ट्राइंग टू मतलब वो लिसन टू द आंसर दैट मतलब यू वांट टू हियर. सो दिस इज व्हाट दिस कंफर्मेशन बायस मीन्स, कि हम लोग उसी इंसान के पास जाते हैं हमारी प्रॉब्लम लेके, जिसके मतलब जिससे हमें वो वाला पर्टिकुलर सोल्यूशन ही मतलब वो सुनना रहता है, ऐसा. As a result, this bias can often result in faulty decision making because one sided information tends to skew an investor's frame of reference, leaving them with an incomplete picture of the situation, or yeah, of the entire situation. ऐसा. फिर हैंडसाइड बायस एंड ओवर कॉन्फिडेंस, ये तो बाय नेम ऑन बाय नेम इटसेल्फ हमको पता चल जाता है. ओवर कॉन्फिडेंस तो ठीक है, हैंडसाइड एक बार पढ़ लेते हैं. हैंडसाइड बायस occurs in situations where a person believes after the fact that onset of some past event was predictable and completely obvious, whereas in fact the event could not have been reasonably predicted. कई बार क्या हो जाता है कि हम लोग ऐसा बोल देते हैं कि इस बंदे की विकेट गिर जाएगी क्योंकि इस बंदे ने लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर को लाया है, या इस बंदे की, या फिर ये बंदा अभी सिक्स मारेगा. एंड वी थिंक कि ओ इस बंदे ने एक्चुअली सिक्स मारा, या इस बंदे की एक्चुअली विकेट गई जो मैंने लिटरली दो बॉल पहले मतलब मतलब बोला था. But that was like the most obvious thing that was going to happen. शायद पावर प्ले मतलब वो चल रहा था, या द अदर बैट्समैन वाज वीक टू द अदर बॉलर, और ये बस हमने मतलब एक तरीके से मतलब वो तुक्का मारा, एंड वो चीज मतलब वो सही हो गई. एंड नाउ वी थिंक कि ओ मतलब जस्ट लाइक वी आर द बेस्ट, कि हमने बोला कि ये शेयर प्राइस ऊपर जाएगा तो मतलब वो जाएगा, या हमने बोला वो चीज नीचे आएगी शेयर प्राइस की तो वो आएगी. सो वी थिंक दैट वी आर डूइंग द राइट थिंग. एंड व्हाट हैपेंस मतलब बिकॉज ऑफ दिस, कि अगर हमको एक बार वो हैंग मिल गया कि अरे मैं तो सही बोल रहा हूँ, जो मैं बोलता हूँ वही होता है, एंड वी स्टार्ट इन्वेस्टिंग मोर एंड मोर एंड मोर, और वी स्टार्ट मतलब वो रिमूविंग द शेयर्स फ्रॉम द मार्केट प्रीटी अर्ली, और हमको पता चल जाता है कि अरे यार हमने बहुत जल्दी निकाल लिया, शेयर का प्राइस और ऊपर चला गया, या हमने बहुत बहुत गलत इन्वेस्टमेंट्स कर लिए, हमारा बस एक सही चला गया तो हमने और पांच डाल दिए, लेकिन अब शेयर का प्राइस नीचे चला गया. सो हैंडसेट बायस गिव्स राइज टू ओवर कॉन्फिडेंस. इस तरीके से मैं इस चीज को ज्यादा रखना मतलब प्रेफर करूंगा, है ना.